So in this tutorial, I'm going to tell you about how Kruskal algorithm work. Kruskal algorithm is a minimum spanning tree algorithm that takes a graph as an input and finds the subset of the edges of a particular graph. It forms a tree that includes every vertex and has the minimum sum of weight among all the trees that can be formed from the graph. In a simple word, you can say Kruskal algorithm takes a graph as an input and find the subset of the vertex and find the subset of the edges of a particular graph. It forms a tree that includes every vertex and has some minimum weight among all the trees, that in the end we have to sum of weights that it form the final Kruskal algorithm. So you can see here how Kruskal algorithm works. It falls under a class of algorithm called greedy algorithms. That means in Kruskal algorithm, we are following greedy techniques, which find the local optimum in the hopes of the finding a global optimum. We start from the edges with the lowest weight. Here is mentioned we start from the edges with the lowest weight. That means we are applying greedy approach and keeps adding edges until we reach our goal. We have to add all the edges until we reach particular goal. The steps for implementing Kruskal algorithm are as follows. First of all, you have to sort all the edges from lowest weight to highest weight. Then you have to take the edge with the lowest weight and add it to the spanning tree. If adding the edge created a cycle, that means this edge you have to reject. If it's not creating a cycle, then you can easily add into the spanning tree. Again, I'm repeating step number 2. Take the edge with the lowest weight and add it to the spanning tree. If adding the edge created a cycle, okay, that means this edge is reject. Then is a step number 3. Keep adding edges until we reach all vertices. So let's consider example, then solve according to the algorithmic steps. For example, I'm drawing here graph. Okay, you can note down. For example, this is a graph. Okay, this is my graph and I'm applying on this graph what? Kruskal algorithmic steps. For example, this is a graph. Okay, so you can count here how many vertices, how many vertex or vertices in this graph. In this graph, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertex. That's mean 6 vertex है. That's mean आपकी edges कितनी होंगी इस graph में. So you can calculate edges with the help of a strategy. For example, n minus 1. N is your vertex. N minus 1 is equal to edges. Number of edges. That's mean if n is 6, 6 minus 1 is equal to 5. That's mean you have to draw a minimum spanning tree with the help of Kruskal algorithm. Your final minimum spanning tree contains 6 vertex and 5 edges. Okay, so I'm writing here some weight according to the vertex to vertex. For example, इस vertex से इस vertex तक का आपका जो weight है 4 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3, 4 है, 3 है, 3 है and then 2. ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं, सॉरी स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने सबसे पहले आपने वो एज को चूज करना है जिसका वेट क्या हो, लोवेस्ट हो, देन ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री. तो इस पूरे ग्राफ में जो सबसे मुझे लोवेस्ट वेट लगा वो किसका लगा, 2 का लगा. सो यू कैन राइट एनीथिंग, चूज द एज विद द लीस्ट वेट. इफ देयर आर मोर देन 1 चूज, ठीक है. इफ देयर आर मोर देन 1 देन चूज एनीवन. अगर आपको लगता है कि दो का वेट एक जैसा है, जैसे यहाँ पे दो का वेट एक जैसा आ रहा है,
ठीक है, तो आपने दोनों में से कोई सा एक चूज करना है, टू वाला चूज कर ले या फिर वाला चूज कर ले। तो जो मैंने टू चूज किया है वो कौन सा चूज किया है, इस साइड वाला टू चूज किया है, ये वाला। ठीक है, okay, then in the third step I'm going to the third step. I'm choosing again. Third step, choose the next shortest edge and add it. तो shortest edge क्या है हमारी, जिसमें हम टू को ऐड कर देंगे। तो अगेन shortest जो है वो आपका ये वाला टू है। तो अब मैंने सेकंड टाइम में कौन सा टू ले लिया है, ये वाला टू। Then again on the fourth step, choose the next shortest edge that does not create a cycle and add it. ठीक है, तो आपने एक ऐसा शॉर्टेस्ट एज चूज करना है जो क्या ना क्रिएट करे, साइकिल क्रिएट ना करे। अगर साइकिल क्रिएट नहीं करता है तो उसको आपने क्या कर देना है, आपने उसको ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे चूज किया थ्री। शॉर्टेस्ट दो थे, आप कोई सा भी चूज कर सकते थे, मैंने थ्री चूज किया। कौन सा थ्री चूज किया, मैंने ये वाला थ्री चूज किया। तो ये आपके आ गए टू, ये आपका आ गया ये वाला टू। Now I'm going to now I'm going on fifth step. Fifth step में आगे again choose the next shortest edge that does not create a cycle and add it. तो इसके बाद जो चूज किया वो अगेन थ्री को चूज किया। जब हम थ्री को चूज करेंगे अगेन तो आपकी कोई साइकिल क्रिएट नहीं होगी। तो यू कैन सी हियर, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज योर टू एंड दिस इज योर अगेन फॉर थ्री। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं, आपने 6 वर्टेक्स कंप्लीट करनी है और एजेस कितनी होनी चाहिए आपकी 5। तो 6 स्टेप की तरफ आते हैं। अगेन रिपीट अंटिल यू हैव अ स्पैनिंग ट्री। आपने जब तक रिपीट करना है जब तक पास आपके पास स्पैनिंग ट्री ना बन जाए। स्पैनिंग ट्री आपको पता है कब बनेगी, जब आपके 6 वर्टेक्स हो जाएंगी और 5 एजेस हो जाएंगी। तो अगेन मैंने यहाँ पे 3 को चूज किया था, यहाँ मैंने चूज किया था 2 को, ये 3 था ये 2 था, उसके बाद मैंने यहाँ चूज किया था 2 को, देन ये मेरा क्या था 3 था। अब मैंने चूज किया किसको, 4 को। अगर मैं ये वाला 4 चूज करती, यू कैन सी हियर आई एम हाईलाइटिंग द अदर 4, इस वाले 4 को चूज करती तो तब भी मेरा साइकिल बनता। यस, मेरा साइकिल बन सकता था, इस वजह से चूज नहीं किया। तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाले 4 को चूज किया। जब मैंने ये वाले 4 को चूज किया तो मेरा कुछ इस तरीके से वर्टेक्स बन गया। तो आप देख सकते हैं ये आपकी बन गई फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसमें कितने वर्टेक्स हैं, इसमें जो वर्टेक्स हैं वो आपके हैं 6। यू कैन काउंट देम 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं आपके, और एजेस कितनी हैं आपकी 5। 1 2 3 4 5। तो ये आपकी फाइनल बन गई मिनिमम स्पैनिंग ट्री अकॉर्डिंग टू क्रुस्कुल एल्गोरिथम। ठीक है, फाइनल स्पैनिंग, और ये आपकी आ गई ट्री। दिस इज योर फाइनल स्पैनिंग ट्री। आई होप आपको क्रिस्कुल एल्गोरिथम के थ्रू फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना आ गई है। Okay, now consider some more example for creating minimum spanning tree with the help of Kruskal algorithm. तो ये मैंने रिमूव कर दिए, एक एग्जाम्पल को और कंसिडर कर लेते हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रुस्कुल एल्गोरिथम। तो एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं क्रुस्कुल एल्गोरिथमिक स्टेप्स। तो देखिएगा यहाँ पे ये ग्राफ मैं बना रही हूँ। तो ये ग्राफ मेरा बन गया यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो ग्राफ है इसके पहले मैं एरो फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे जा रहा है, इसका ये यहाँ पे आ रहा है। देन ये हमारा बिफोर और आफ्टर हम देखेंगे कि बिफोर हमारा ग्राफ ऐसा था, देन आफ्टर क्रुस्कुल के एल्गोरिथमिक स्टेप्स लगा के हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये मिला। तो ये हमारी बिफोर कंडीशन है ग्राफ की। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ओके, then this is 0 vertex, this is 1 2 3
4 5 6 7 एंड देन 8। अब डिस्टेंस लिख लेते हैं, वेट लिख लेते हैं, क्या है इसका 4 है सपोज, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ मार्क कलर। ये हमारा सपोज 4 है वेट, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 7 9 10 14 4 2 6, देन यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं, 7 11 8 एंड दिस इज 1। तो ये हमारा बिफोर, ठीक है। ये हमारा अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं आफ्टर। तो देखते हैं आफ्टर अप्लाइंग क्रूस्कुल एल्गोरिथम, और हम जो अप्लाई कर रहे हैं एल्गोरिथम कौन सा है, क्रूस्कुल एल्गोरिथम हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्रूस्कुल एल्गोरिथम के हमने एल्गोरिथमिक स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपने शॉर्टेस्ट एज को लेना है और आपने ऐड करते जाना है जब तक आपको फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं मिल जाती। और आपको पता है इस पूरे ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स है। इस पूरे ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं, 9। तो यानी कि आपके 9 वर्टेक्स है। 9 में से जब आप माइनस करेंगे 1 तो आपकी कितनी एजेस बनेंगी, आपकी 8 एजेस बनेंगी, ठीक है। तो आपके 9 वर्टेक्स है और आपकी एजेस कितनी बनेंगी, 8 एजेस बनेंगी आपकी, 8 बनेंगी आपकी क्या, एजेस। तो ये आपकी मिनिमम स्पेलिंग ट्री कैसे बनेगी, 9 वर्टेक्स में बनेगी और 8 एजेस पे बनेगी आपकी क्या, फाइनल मिनिमम स्पेलिंग ट्री। ये आ गई आपकी फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो देखते हैं किस तरीके से हमने डिजाइन करना है हमने। तो एक काम ही करते हैं, बिफोर डिजाइनिंग हम पहले वर्टेक्स को अपने मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर उसी ग्राफ में हम एजेस को इंक्लूड करते चले जाएंगे। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ये बात। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने सारे वर्टिसेस बना लिए हैं, मैंने अपने सारे, क्योंकि मुझे पता है वर्टिसेस तो 99 रहेंगे, बस एजेस हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पहले मैंने सारे वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए हैं, ये मेरे आते हैं वर्टिसेस। लिख भी लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, दिस इज 6 7 एंड देन दिस इज 8, ठीक है। तो हमारे 9 वर्टेक्स हो गए। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके, अब हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है, हमने शॉर्टेस्ट एज से स्टार्ट करना है। तो और किसी का मैं इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है कलर। इन पूरे ग्राफ में जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है सबसे ज्यादा वो किसकी है, हमारे पास 2 की है। तो और कीजिएगा, 2 हमारे पास 2 है, ये वाला 2 भी है हमारे पास और ये वाला 2 भी, तो आपकी मर्जी है, आपको सभी 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाला 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एनालाइज किया कि इसमें शॉर्टेस्ट एज किसकी है, तो अगेन मुझे 2 की मिली। और जब मैं याला 2 एज ड्रॉ करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई साइकिल नहीं मिलती, दैट्स मीन आई विल ड्रॉ, ठीक है, आई कैन इजिली ड्रॉ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, देन आई कैन इजिली ड्रॉ दिस एज बिटवीन 60 to 5, क्योंकि यहाँ पे मेरी साइकिल अकर नहीं हो रही है। आगे देखते हैं 2 के बाद लोवेस्ट वेट किसका है। अगर आप एक और करें तो मैंने 1 का भी लोवेस्ट वेट है, मैंने 2 पे पहले असाइन कर दिया है, तो 1 का भी लोवेस्ट वेट है, तो पहले 1 को असाइन करना चाहिए था, बहरहाल हमने 2 को असाइन कर दिया, तो ये 1 को हमने असाइन कर दिया, 1 को असाइन कर दिया, 2 को असाइन कर दिया, देन 3 हमने चेक किया, इस ग्राफ पे 3 है तो 3 इस ग्राफ पे नहीं है, तो फिर हमने क्या असाइन किया, हमने 4 को असाइन कर दिया। और आफ्टर असाइनमेंट आपने चेक किया कि कोई आपकी इसमें क्या तो नहीं है, इसमें वो तो नहीं है, साइकिल तो नहीं है, तो बिल्कुल साइकिल नहीं बन रही है। 4 के बाद हमें एक और 4 और मिल रहा है जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, बिल्कुल इस 4 को भी हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि इसमें भी क्या है, साइकिल नहीं है। तो जहाँ आपको शॉर्टेस्ट एज मिलती है वहाँ पे आपने एज को ड्रॉ कर देना है, इसका कॉन्सेप्ट ये है क्रूस्कुल का, जबकि प्रेम्स का बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने 4 आ गया। अब चेक करते हैं 4 के बाद हमारे पास क्या है, 5 इसमें है नहीं, 6 को चेक करते हैं, 6 इसमें है नहीं, तो 7 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया 7, ठीक है। तो यह बन गया 7 का, तो यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी आ गई 7। देयर इज नो लूपिंग कंडीशन अकर, दैट्स मीन हमारा ग्राफ बिल्कुल परफेक्टली बन रहा है, हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बिल्कुल परफेक्टली बन रही है विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कुल एल्गोरिथम। 7 के बाद 8 को चेक करते हैं, तो 8 हम बना लेते हैं, 8 हमें 2 मिले, ठीक है। तो 8 आप याला 8 बनाएं, आपकी मर्जी, आप याला 8 बनाएं या याला 8 बनाएं। तो देखते हैं, अगर मैं याला 8 बना दूं
तो तब भी कोई मसला नहीं है, अगर मैं याला एड बनाती तब भी आपकी क्या नहीं बनती, आपकी साइकिल नहीं बनती। फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने याला एट बना दिया है, ठीक है। तो अभी तक साइकिल नहीं बनी, लेकिन अब इस एट को ड्रॉ करने के बाद ये जो एट मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अगर मैं याला एट बनाती हूँ तो देखिएगा मेरा एक साइकिल अकर हो रही है पूरी कंप्लीट, एक गोल लूप बन रहा है, जो कि गलत है, नहीं बनना चाहिए। रिक्वायरमेंट में एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, तो इसको नहीं बनाना है आपने, ठीक है। आपने स्किप करना है कि ये जो है एट, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो दैट्स मीन आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। अब 8 के बाद बारी आती है 9 की, तो 9 को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका 9, ठीक है। ये आ गया आपका 9। ओके, तो ये 9 आ गया आपका। अब देखते हैं कि हमारे वर्टेक्स कंप्लीट हो गए, तो काउंट कर लेते हैं। वर्टेक्स तो हमारे कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एजिस में हमारी कितनी है, 9 माइनस 1 8 होनी चाहिए। एजिस हमारी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको आप काउंट कर लें, आपके पास क्या टोटल डिस्टेंस आया, आप काउंट कर लें, आपके पास मिनिमम वेट क्या आया, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 लिख लीजिए यहाँ पे, दिस इज योर 8, तो उसको मैं रेस कर रही हूँ, ठीक से लिख रही हूँ। ये आ गया आपका 8, ठीक है। ये आ गया 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 एंड देन प्लस 9। तो आप जब इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट क्रूस्कुलर एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेट क्या आया, आपका वेट आया यहाँ पर क्या, 37। तो यहाँ पे लिख देते हैं 37 हमारा आ गया फाइनल मिनिमम वेट, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगी आपकी, या तो आप इस तरीके से कर लें, या तो मैंने आपको जो पहले वाली एग्जाम्पल कराई है आप वैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिजाइन कर लें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये सॉरी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कुल, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरीके से क्रिएट करना चाहें।